classes. Myself Gunad Mongale. Students, in the last class we had discussed about the different cell organelles in the eukaryotic cell. Okay, in that we had discussed about the centriole as well as flagella, cilia. All these are different cell organelles helping the eukaryotic cell. And you know, different cell organelles have different functions. Now, the next cell organelles of the eukaryotic cell is very important cell organelles. Okay, that is nucleus. Who discovered the nucleus? The nucleus is discovered by Robert Brown. Robert Brown discovered first nucleus in eukaryotic cell, and you know, eukaryotic cells are protista, fungi, plants and animalia, all these having nucleus. There are some of the exceptions, but most of the cell having nucleus in eukaryotic organisms, and they are described by Robert Brown in 1831, and the matter of the nucleus is stated with basic dye, that is name of the chromatin. क्रोमोसोम को कलर देने के लिए बेसिक डाई यूज किया जाता है. ओके, जनरली क्रोमोसोम को कलर देने के लिए बेसिक डाई यूज किया जाता है, एंड दैट नेम ऑफ द बेसिक डाई, नेम ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन बाय द फ्लेमिंग. क्रोमैटिन नाम का मतलब रहता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर. इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ chromatin material. This is what nuclear envelope. This structure is called as nuclear envelope, and inside the nuclear envelope there is the network of the chromatin is there, and that's why it is called as chromatin. What is chromatin? The thread-like structure present inside the nucleoplasm is called as chromatin. Actually, there are two types of chromatin found in the cell: heterochromatin and euchromatin. We have discussed that in later part. Okay, so chromatin is generally discovered by Fleming. Fleming is the name of scientist, and normally cell has only one nucleus. Normally, single cell has single nucleus. That is called uninucleate cells. Uninucleate cell, but some of the cell having more than one nucleus, and some of the cell having no nucleus. There are exception. वो exception है, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि normally हर एक cell के अंदर एक nucleus होता है. Okay, and some of the mature cell lack nucleus also. जैसे कि आपको पता होगा mammals के अंदर जो RBC है उसके अंदर nucleus नहीं है. Okay, RBC in the mammals having no nucleus. उसमें कुछ exception है, camel और एलिमा वहाँ पे nucleus present रहता है, मगर generally RBC के अंदर nucleus नहीं है. आपको दूसरा example बताया था मैंने, shoe tube in the phloem of plant cells. एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम रहता है उसमें शू ट्यूब जो रहते हैं उस शू ट्यूब के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है. ओके, सो दे आर एग्जांपल ऑफ द सेल विदाउट न्यूक्लियस. ओके, और कुछ सेल है कि जिसके अंदर मेनी न्यूक्लियस भी रहते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग मल्टी न्यूक्लिएट सेल इन इट. फॉर एग्जांपल स्टैटेड मसल फाइबर्स. स्टैटेड मसल फाइबर्स जो एनिमल में है तो याद रखो उसको बोलते हैं सिंचियन सेल्स. सिंचियन सेल मतलब मल्टी न्यूक्लिएट सेल इन द एनिमल इज कॉल्ड एज सिंचियन सेल बोलते हैं उसको, और मल्टी न्यूक्लिएट सेल इन द प्लांट्स एंड फंगाई इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जामिनेशन के लिए, नीट के लिए. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट सेल इन द एनिमल इज कॉल्ड एज सिंचियन कंडीशन, and multinucleate condition in the plants and fungus is called as sinusoidic cell. Okay, जनरली आपको अगर पता होगा जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर इंटरफेस बोल के फेस रहती है, इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेस होती है. उस इंटरफेस में आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करने के लिए मिलता है. आप डिटेल स्टडी कर सकते हो किसकी? न्यूक्लियस की. कहाँ पे? इंटरफेस नाम की सेल के अंदर. और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, न्यूक्लियस का और क्या क्या नाम है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल. ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं इसको. न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलर ऑफ सेल और डायरेक्टर ऑफ सेल. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं. और न्यूक्लियस के अंदर है क्या? सबसे बाहर का जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है वो पार्ट. ओके, दूसरा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स. न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म.
nuclear, that is called a nucleoplasm. Third is chromatin, and fourth is nucleolus. The dark colored area structure present inside the nucleus is called as nucleolus. Nucleolus is sometimes one or sometimes many in the cell. According to cell, number of nucleolus is changed, and nucleolus has the function of rRNA formation. nucleolus क्या करता है? rRNA formation करता है और राइबोसोमल आरएनए फॉर्म करता है, या फिर राइबोसोम को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है कौन? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम आल्सो इनसाइड द सेल. ओके, या इसीलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं. न्यूक्लियोलस इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं एग्जाम के लिए. न्यूक्लियस जो है डबल लेयर स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन कितने बेटा? 2 मेम्ब्रेन है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. और 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, दैट इज बिटवीन 2 मेम्ब्रेन इज 10 to 15 नैनोमीटर. द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों के अंदर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस. पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं उसको, और वो कितना है? 10 to 15 नैनोमीटर है. एंड द बैरियर बिटवीन द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है बेटा? अंदर और बाहर. बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म और अंदर क्या है? अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर का लिक्विड है. ये दोनों के अंदर बैरियर पैदा करता है, बैरियर क्रिएट करता है कौन? न्यूक्लियर एनवलप. मगर ये पूरा बैरियर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जगह पे क्या है? स्मॉल पोर है, एंड दैट स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. क्यों न्यूक्लियर पोर फॉर्म होते होंगे? न्यूक्लियर पोर इज द प्लेस through which exchange of material takes place from cytoplasm to nucleoplasm and nucleoplasm to cytoplasm. आपको पता होगा साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, वो आरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है. तो इसका मतलब आरएनए के ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए ये पोर रहता है, और उस पोर को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं. यूजुअली कंटेन्स विद द आउटर मेम्ब्रेन. आपको ये भी बोला था मैंने, याद कीजिए. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज एसोसिएट विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज एसोसिएट विद द व्हाट? outer membrane of the nucleus is associated with the rough endoplasmic reticulum. Outer membrane of the nucleus is associated with the rough endoplasmic reticulum. Why? Because they having ribosome on the surface. याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वो बाहर से अटैच होते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है, और वो एटीएस टाइप के राइबोसोम रहते हैं. ओके, और इसलिए राइबोसोम बिहेव करते हैं. न्यूक्लियर एनवलप हैज माइन्यूट पोर. मैंने बोला ना, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर छोटे छोटे पोर रहते हैं, जहाँ पे क्या होता है? दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, एंड द पोर इज नथिंग बट पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हाट? आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर पोर क्या है? पैसेज है, जिसके द्वारा क्या होता है? कुछ मटेरियल सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज होता है. स्पेशली कौन सा मटेरियल? आरएनए एंड प्रोटीन होता है ना. उसके बाद अभी देखो न्यूक्लियर एनवलप हो गया. न्यूक्लियर एनवलप पॉइंट फिनिश. नाउ नेक्स्ट इज chromatin. Now what is the function of chromatin? Chromatin is nothing but the network of nucleoprotein fibers. न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का क्या है? नेटवर्क है. इसको हम बोलते हैं chromatin बोलते हैं. They contain DNA and basic protein, that is histone protein. chromatin के अंदर क्या क्या रहता है बेटा? chromatin contain DNA as well as histone protein. दो कॉम्बिनेशन रहता है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आल्सो, एज वेल एज आरएनए आल्सो. याद रखो, और मैं बोल रहा हूँ क्रोमैटिन के अंदर डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, कभी कभी नॉन हिस्टोन प्रोटीन में रहता है, और आरएनए भी है. एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंटेन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स.
फिर क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, ओके, माइटोसिस स्पेस स्टार्ट हो जाती है, माइटोसिस स्पेस, तो ये जो क्रोमैटिन था इंटरफेस में, उसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम में हो जाता है। कैसे, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, क्रोमैटिन का कन्वर्जन क्रोमोसोम में बन जाता है। आप बोलेंगे सर क्रोमैटिन ऐसा रहता है, वो क्रोमोसोम कैसा रहता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको सबको पता होगा, क्रोमोसोम इज लुक लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रोमैटिन के अंदर पैकेजिंग होता है, क्रोमैटिन के अंदर शॉर्टनिंग होता है, क्रोमैटिन के अंदर कॉइलिंग होता है, और कॉइलिंग की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, क्रोमैटिन का कन्वर्जन क्रोमोसोम में हो जाता है ना। कब, सेल के अंदर, जब सेल डिवीजन होता है तब, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बोला था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी रहता है, ओके। मगर उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रोमैटिन के अंदर जो टाइप्स है, बेसिकली क्रोमैटिन के अंदर दो टाइप्स है, वन इज हेटेरोक्रोमैटिन, एंड अदर इज यूक्रोमैटिन, ओके। क्रोमैटिन के अंदर दो टाइप है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ये दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्या डिफरेंस है देखो दोनों के अंदर। हेटेरोक्रोमैटिन इज जनरली हाईली टाइटली पैक्ड एंड डार्क कलर। हेटेरोक्रोमैटिन कैसे, हेटेरोक्रोमैटिन इज टाइटली पैक्ड एंड डार्क स्टेन्ड, ओके। कौन, हेटेरोक्रोमैटिन इज टाइटली पैक्ड एंड डार्क स्टेन्ड, और यूक्रोमैटिन कैसे होंगे फिर, लूजली पैक्ड एंड लाइट कलर, लाइटिंग कलर। ये होगा पहला डिफरेंस किसके अंदर, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। ये पॉइंट आपको डबल है, कहां पे, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ एलिमेंट चैप्टर में आपको और आने वाला है पॉइंट्स, दैट्स व्हाई दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर टाइटली पैक्ड डीएनए है और इधर लूजली पैक्ड डीएनए है, इसका कलर डार्क है, इसका कलर लाइट है, इसका यूक्रोमैटिन का। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड, लो डीएनए डेंसिटी, लो डीएनए डेंसिटी, यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन में क्या होगा, हाई डीएनए डेंसिटी होगी, हेटेरोक्रोमैटिन हैज हाई डीएनए डेंसिटी, और उधर क्या है, लो डीएनए डेंसिटी, क्योंकि लूजली पैक्ड है इसलिए डेंसिटी कम रहती है ना किसकी, डीएनए की, ओके। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, जेनेटिकली, ये जो है जेनेटिकली, ओके, लेस एक्टिव रहता है कौन, हेटेरोक्रोमैटिन, और ये जेनेटिकली मोर एक्टिव रहता है कौन, यूक्रोमैटिन जेनेटिकली मोर एक्टिव, ओके। फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक एंड हेटेरोक्रोमैटिन जो है, ओके, हेटेरोक्रोमैटिन फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, खाली यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं कौन, हेटेरोक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन फाउंड इन, हाँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके, दोनों सेल में मिलते हैं कौन, यूक्रोमैटिन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। और लास्ट ओके, लास्ट डिफरेंस मैं बता रहा हूं, यूक्रोमैटिन आर प्रेजेंट टू द इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस। यूक्रोमैटिन जो है कहां है, इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहता है कौन, यूक्रोमैटिन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, एंड हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट, ओके, टुवर्ड्स periphery of nucleus. So this is about the difference between heterochromatin and euchromatin in the cell. ये heterochromatin और euchromatin के अंदर का डिफरेंस दिया मैंने आपको, ओके। तो ये क्रोमैटिन के टाइप्स है बेटा। अभी तक आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, न्यूक्लियर एनोड बताया, क्रोमैटिन बताया। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियोलस क्या है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोलस?
Okay, some of the nucleolus are in the cell. Nucleolus are sometimes more of few in number. Number of nucleolus जो है सेल टू सेल क्या होते हैं, चेंज होते हैं. Okay, and one or more non-membranous spherical bodies are formed in the cells. Non-membranous, याद रखो, न्यूक्लियोलस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहता, विदाउट मेम्ब्रेन है, स्फेरिकल बॉडीज रहते हैं सेल के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस. और ऑलरेडी मैंने बोला आपको न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग है. क्या करता है, दे कंटिन्यूस द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोलस कहाँ है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिक्स है, विदाउट मेम्ब्रेन है, एंड दैट इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस. राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है और उसकी वजह से फिर फाइनली राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है कौन, न्यूक्लियोलस. इसीलिए इसको कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल. किसको, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल. तो ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. और बाद में मैं आपको बोला था आपको, जब क्रोमैटिन का कन्वर्शन किसमें होता है, क्रोमैटिन का कन्वर्शन किसमें होता है, क्रोमैटिन का कन्वर्शन क्रोमोसोम में होता है. तो क्रोमोसोम में आपको पता होगा टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग पार्ट है. ओके, क्या क्या कौन से पार्ट है, सपोज ये क्रोमैटिन है ऐसा. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. ओके, तो क्रोमोसोम में क्या क्या है, सबसे अंदर मिडिल जो पार्ट है उसका दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ओके, ये और ये क्या है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्रोमोसोम के ऊपर सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, उसको कहते हैं काइनेटिक कोर. ओके, क्या बोलते हैं, काइनेटिक कोर. याद रखो. और काइनेटिक कोर इज द प्लेस, काइनेटिक कोर एक ऐसा प्लेस है कि जिसके ऊपर क्या होता है, अटैच होते हैं कौन, स्पिंडल फाइबर्स. उसको माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब बोलते हैं. स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं कहाँ पे, काइनेटिक कोर इज द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर एंड दैट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर या फिर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो है उसको अटैच होते हैं. दोनों साइड में दो क्रोमैटिड्स है. ओके, और इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. कौन से क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स है. एंड बोथ द क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड ऑन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. दोनों क्रोमैटिड जो है एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रोमियर. ओके, और याद रखो सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड एज, सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेंट्रोमियर को और क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं. ओके, वैसे कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. क्रोमोसोम के अंदर दो कॉन्स्ट्रिक्शन है. ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ से क्रोमोसोम ब्रेक होता है. और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, कहाँ पर रहता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ सैट क्रोमोसोम. सैट क्रोमोसोम के साइड में रहता है कौन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट एट द साइट ऑफ सैट क्रोमोसोम. ओके, सैट क्रोमोसोम के साइड में रहता है. सैट का मतलब सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं उसको हम. ओके, सैट क्रोमोसोम बोलते हैं. उसके साइड में है कौन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं. और सैट का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको. साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको बोलते हैं किसको, सैट को. और सैट क्रोमोसोम जो है उसकी साइड में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है. एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. याद रखो नाम, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का दूसरा नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स. ये क्रोमोसोम के ऊपर के पार्ट है. और क्रोमोसोम में आपको मैंने बोला था एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टीलोमेयर आल्सो. आपने टीलोमेयर क्या है सर, टीलोमेयर इज द प्लेस ऑफ क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम तो क्या करता है, एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए, अटैच ना होने के लिए हेल्प करता है कौन, टीलोमेयर.
उसी के साथ जो क्रोमोसोम है एक दूसरे को चिपकता नहीं है, मतलब अटैच नहीं होता है, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच नहीं होता। मतलब क्रोमोसोम को क्रोमोसोम सेपरेट करने के लिए और क्रोमोसोम को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट करने के लिए कौन बनता है, टेलोमेर बनता है। और ह्यूमन सेल में आप अगर देखोगे द लेंथ ऑफ डीएनए इज 2 मीटर या 2.2 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा था नीट के एग्जाम में। लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन द ह्यूमन इज 2.2 meter long and DNA distributed among the 46 chromosome, that is 23 pairs of chromosome. Okay, जो DNA है उसकी लेंथ 2 मीटर है और वो DNA कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 46 क्रोमोसोम में। आपको पता होगा ह्यूमन में भी कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। उस 46 क्रोमोसोम का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो तो 46 क्रोमोसोम में आपको पता होगा इन 46 क्रोमोसोम देयर आर 44 ऑटोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम ना, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। 2 सेक्स क्रोमोसोम कौन से, मेल में रहेंगे XY और फीमेल में रहेंगे XX, दैट इज 2 सेक्स क्रोमोसोम। सो 46 क्रोमोसोम्स आर देयर एंड एवरी क्रोमोसोम हैज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक क्रोमोसोम में क्या है, सेंट्रोमियर है, उसको हम प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ऑन द साइड ऑफ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रोमियर इज दिस लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड काइनेटिक कोर। और मैंने बोला आपको काइनेटिक कोर एक ऐसा डिस्क है जिसके साथ सेल में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। जैसे ही क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, अनाफेज फेज में सेंट्रोमियर ब्रेक होता है, सेपरेट होता है क्रोमैटिड्स, तब वो स्पिंडल फाइबर क्या करता है, काइनेटिक कोर के साथ अटैच होके उनको सेपरेशन करने के लिए हेल्प करता है। एंड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे, क्रोमोसोम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्रोमोसोम के कुछ टाइप बता रहा हूँ। ओके, कौन कौन से क्रोमोसोम है उसके टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, किसके, क्रोमोसोम के, किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है क्रोमोसोम में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूँ, किसके, क्रोमोसोम के। कौन कौन से 4 टाइप है, नंबर 1 मेटासेंट्रिक, दिस वेरी इजी पॉइंट, बहुत ही इजी पॉइंट है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या है, मेटा मींस मिडल, जहाँ पे क्रोमोसोम में क्या है, सेंट्रोमियर इज फाउंड एट द मिडल ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर कहाँ रहता है, मिडल में रहता है, किसके, क्रोमोसोम के, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, मैंने आपको बोला था यहाँ पे सैट क्रोमोसोम भी रहता है, सैटेलाइट बोलते उसको हम। और याद रखो बेटा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर और सेंटर में है, इसलिए क्रोमोसोम का जो शेप बनता है दैट इज वी शेप्ड। क्या बनता है, वी शेप्ड, मिडल ऑफ द सेंट्रोमियर फॉर्मिंग इक्वल आर्म्स। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, दो क्रोमैटिड जो है उनके इक्वल आर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, उसके भी नाम में मीनिंग है। सब मतलब बिलो, सेंट्रोमियर से थोड़ा सा नीचे, ओके, या थोड़ा दूर। तो यहाँ पे क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक में कैसा था क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर एकदम मिडल में था ना, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ था, मिडल में था। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, एक आर्म बड़ा होगा और दूसरा आर्म छोटा होगा। इसका मतलब हियर द क्रोमोसोम इज हैविंग एल शेप्ड शेप। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज नियर टू वन ऑफ द एंड फॉर्मिंग द शॉर्ट आर्म एंड वन इज लॉन्ग आर्म। एक शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म है, उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तीसरा, थर्ड टाइप इज एक्रोसेंट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज क्लोज टू द एंड एंड फॉर्मिंग वेरी शॉर्ट आर्म एंड वेरी लॉन्ग आर्म। एक आर्म बहुत ही छोटा बनता है और एक आर्म बहुत ही बड़ा बनता है। ओके, और जो सेंट्रोमियर है नियर टू द एंड है, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है क्रोमोसोम का जी शेप्ड बन रहा है। एंड लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब एंड, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमैटिड्स। इसका मतलब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है ओनली वन आर्म, इसमें एक ही आर्म बनता है टीलोसेंट्रिक में, और इसको टर्मिनल सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल है। ओके, और इसी के साथ ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। न्यूक्लियस के अंदर और कुछ मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। न्यूक्लियस के अंदर यूनिन्यूक्लिएट सेल बताया मैंने, मल्टीन्यूक्लिएट पहले बताया। कुछ सेल जो है जैसे कि पैरामोशियम है, पैरामोशियम में बाइन्यूक्लिएट कंडीशन रहते हैं। बाइन्यूक्लिएट का मतलब क्या है,
two nucleus, micronucleus and meganucleus are there in the paramecium. Okay, so binuclear condition found there and मल्टीन्यूक्लियर सेल एनिमल सेल मैंने बोला था आपको सिंचियल सेल है, उसका एग्जांपल मैंने बोला था एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। सिंचियल सेल कहाँ रहते हैं? एपिडर्मल सेल ऑफ द एस्केरिस, वहाँ पे सिंचियल कंडीशन है। और स्ट्राइटेड मसल जो है मल्टीन्यूक्लियर है, वो भी एग्जांपल आपको बोला था। और सिनोसाइटिक सेल जो है प्लांट में फंगस में मिलते हैं। सिनोसाइटिक सेल राइजोपस का जो हाइफा है राइजोपस फंगस एंड बॉक्टीरिया, ओके, इन दोनों में सिनोसाइटिक कंडीशन मिलते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में आपको मैंने पार्ट बताया, न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट है, ओके। और बिलो द न्यूक्लियर देयर द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, याद रखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स को बांधता है ना, ओके, सर्कल करता है उसको न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स जनरली प्रोटीन फाइबर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कैसा है? प्रोटीनेसियस फाइबर है, इसके अंदर प्रोटीन फॉर्म होते हैं। और न्यूक्लियोलस के बारे में आपको बता दिया मैंने। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होता है, ओके। एंड न्यूक्लियोलस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है, एक्टिव होता है, उस सेल में न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होता है, न्यूक्लियोलस का साइज बड़ा होता है। और वो क्या करता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोल के काम करता है। न्यूक्लियोलस को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ओके। आपको ये भी पता होगा कि जो न्यूक्लियोलस है वो सेल डिवीजन में प्रोफेज फेज में डिसअपियर होता है और टेलोफेज फेज में रिअपियर होता है। और जब सेल डिवीजन बताऊंगा मैं आपको तब बताऊंगा। प्रोफेज के स्टेज में न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर होता है लेट प्रोफेज में, और टेलोफेज में वो रिअपियर होता है, कार्बन और फॉर्म होता है सेल के अंदर, ओके। बाद में मैंने आपको क्रोमैटिन के बारे में बता दिया इंफॉर्मेशन। क्रोमैटिन क्या है? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए रहता है और हिस्टोप्रोटीन है। क्रोमैटिन के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम बताया। क्रोमोसोम के बारे में आपको बताया मैंने स्ट्रक्चर, ओके। और सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ओके, यूज्ड फॉर मार्कर। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है ना क्रोमोसोम में, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। इट इज आल्सो एक्ट्स एज अ मार्कर, मींस आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमोसोम में हेल्प करता है। ऑन आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड पेलिकल। क्रोमोसोम के ऊपर प्रोटीनेसिस बनती है, कवर बनता है प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं पेलिकल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम का जो कवर है उसको हम पेलिकल बोलते हैं, है ना। और क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए कल्चर स्टेन यूज करते हैं। क्रोमोसोम को कलर देने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं? कल्चर स्टेन नाम का स्टेन रहता है, कलर रहता है, वो जनरल यूज किया जाता है, ओके। और बाकी की जो पार्ट है मैंने आपको बताया, टेलोमेयर का बताया स्ट्रक्चर। टेलोमेयर मतलब वो दोनों क्रोमोसोम के एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होने देता, ओके। और लेंथ ऑफ द लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम आर्म रेशियो। लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म जो है वो दोनों को कंडीशन को बोलते हैं क्या? आर्म रेशियो बोलते हैं, ARM, आर्म रेशियो से बोलते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको एक लास्ट लेक्चर में क्या लेने वाला हूँ, माइक्रो बॉडीज क्या है और उसके साथ सभी सेल ऑर्गेन्स का क्या कंडीशन है, कितने सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कितने डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कितने विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्ड है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आज आपको न्यूक्लियस के बारे में पूरा पढ़ाया इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस पॉइंट वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड इन दिस chapter. Okay, have a good day. Thank you. Now next is micro bodies. Okay, what is micro bodies? Micro means small. Micro means small, and body means structures. These are membrane-bound minute vesicles that contain various enzymes. Micro bodies are membrane-bound minute vesicles which contain various enzymes in it and present in both animals. Macro body कहाँ रहते हैं? प्लांट में भी और एनिमल में भी, दोनों में रहते हैं, ओके। दे हैव लिपिड बायलेयर्स। माइक्रो बॉडी के बाहर क्या रहता है? माइक्रो बॉडी के बाहर क्या रहता है? दे आर हैविंग लिपिड बायलेयर। माइक्रो बॉडी के आउटर साइड में लिपिड बायलेयर रहता है एंड उसके बाहर क्या है? उसके बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर फॉर्म होता है और उसके अंदर क्रिस्टलाइन कोर फॉर्म होता है ना, क्रिस्टलाइन कोर फॉर्म होता है यहाँ पे माइक्रोबॉडीज के अंदर। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ये प्रोटीनेसियस फाइबर से बनता है। माइक्रोबॉडीज कंटेन व्हाट वेसिकल्स कॉल्ड एज they are having enzymes present in both primary animal cells and they are bounded by single membrane। माइक्रोबॉडीज के बाहर क्या है, माइक्रोबॉडीज bound by single membranes, okay, and contain various enzymes and there are two types, peroxisomes and glyoxysomes। माइक्रोबॉडीज के दो टाइप है, एक पेरोक्सिसोम्स और दूसरा ग्लायोक्सिसोम्स। तो याद रखो ये जो पेरोक्सिसोम है प्लांट सेल में भी रहता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है ना, कौन, पेरोक्सिसोम्स प्लांट सेल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ पेरोक्साइड सिंथेसिस। पेरोक्सिसोम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। पेरोक्सिसोम्स हैव एंजाइम्स डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करता है पेरोक्साइड सिंथेसिस। पेरोक्सिसोम की वजह से क्या होता है, पेरोक्सिड सिंथेसिस होता है, ओके। आपको पता होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन भी करता है ना। पेरोक्सिसोम हेल्प इन द पेरोक्सिड सिंथेसिस एंड दे आर कंटेन पेरोक्सिडेज एंजाइम्स। पेरोक्सिसोम के अंदर क्या है, एंजाइम है, कौन सा, पेरोक्सिडेज नाम का एंजाइम है एंड दे कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, सबस्ट्रेट्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, है ना। पेरोक्सिडेज की वजह से क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है, ओके, एंड दे आर एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर वेरियस रिएक्शंस, ओके, एंड दे इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। पेरोक्सिडेज okay, peroxidase help in the what, oxidation मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बाद ये ब्रेक डाउन होता है, ओके, कैटलिस्ट करता है, काम में कैटलिस्ट को काम करता है, डिग्रेड करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, और उसी के साथ ये पेरोक्सिडेज ऑक्सीडेशन किसका करता है, दे हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ, ओके, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करता है ना, कौन, पेरोक्सिडेज हेल्प इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ओके। पेरोक्सिसोम आल्सो इन्वॉल्व इन द एंड बोथ प्लांट एनिमल सेल्स, मेसोफिल सेल के अंदर भी रहता है। और पेरोक्सिसोम क्या करता है, पेरोक्सिसोम्स क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कर रहा है, एज वेल एज पेरोक्सिसोम आल्सो हेल्प इन द फोटो रिस्पिरेशन, किसमें, इन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ क्या करता है, फोटो रिस्पिरेशन करता है। और पेरोक्सिसोम में और क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कन्वर्शन H2O में होता है और प्लस O में होता है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होने के बाद H2 and O ऐसे दो प्रोडक्ट बनते हैं, किसकी वजह से, पेरोक्सिसोम की वजह से। सो दे आर ऑल कैटलिस्ट रोल काम करता है पेरोक्सिडेज, एंजाइम रोल काम करता है पेरोक्सिडेज, ये पेरोक्सिसोम की फॉर्म होता है। तो ये पेरोक्सिसोम का फंक्शन है। अनदर इज स्पेरोसोम, ओके, पेरोक्सिसोम के साथ साथ क्या है, स्पेरोसोम। अभी देखो स्पेरोसोम का मतलब बहुत सिंपल है, स्पेरो मतलब गोल, सर्कुलर बॉडी जो रहती है उसको स्पेरोसोम बोलते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स एंड दे आर मेजर साइट फॉर लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ क्यूटीन, सुपेरिन, ओके। स्पेरोसोम क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं, कहाँ पे, प्लांट में, ओके। और दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूटीन, सुपेरिन, ओके। क्यूटीन आपको पता होगा लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर रहता है क्यूटिकल, उसके अंदर क्यूटीन रहता है। उसके बाद सुपेरिन रहता है एंडोडर्मिस के अंदर, रूट के अंदर एंडोडर्मिस है उसके अंदर सुपेरिन रहता है, जो कि हाइड्रोफोबिक है, वाटर का अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब स्पेरोसोम से बॉडी बनते हैं। स्पेरोसोम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूटीन, सुपेरिन एंड सिंथेसिस एक्सेट्रा, ओके। देन ग्लायोक्सिसोम्स आर ओनली इन प्लांट्स। बाद में ग्लायोक्सिसोम जो है, पहले बोला मैंने आपको पेरोक्सिसोम,
बाद में बोला मैंने स्पिरोसोम, बाद में बोल रहा हूँ ग्लाइकोसोम्स, दे आर आल्सो फाउंड इन द प्लांट्स, स्पेशली फैटी सीड्स। ओके, ग्लाइकोसोम कहाँ पे मिलते हैं? ग्लाइकोसोम्स यू फाइंड आउट इन द फैटी सीड्स। ओके, और सीड्स ऑफ कैस्टर, glycosomes are found in the present in the where fatty seeds of castor seeds, castor seed। ओके, जिसके अंदर फैटी एसिड फॉर्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, देन स्टोमेटा के गार्ड सेल के अंदर है कौन? ग्लाइकोसोम प्रेजेंट रहता है। और they are also present in the unripe fruits, मतलब अनराइपन फ्रूट के अंदर जो मतलब जो फ्रूट राइपनिंग हुआ है, इमेच्योर है, उसके अंदर भी रहता है कौन? ग्लाइकोसोम रहता है। ओके, और इसके अंदर भी क्या रहता है? एंजाइम रहता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोलिक पाथवे। ओके, ये भी क्या करता है? फिर ऑक्सीडेशन करता है किसका? फैटी एसिड का, और उसकी वजह से क्या होती है? ये पाथवे होती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लायोजाइलेट पाथवे होता है। किसकी वजह से? ग्लायोजाइलेट पाथवे होता है किसकी वजह से? ग्लाइकोसोम की वजह से प्लांट में ये पाथवे परफॉर्म करते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हो गए पूरे माइक्रोबॉडीज के बारे में फंक्शंस। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सिंपल एक थिंग बता रहा हूँ, दैट इज कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहते हैं, अबनॉर्मल क्रोमोसोम रहते हैं प्लांट्स कहाँ की लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसमें से पहला क्रोमोसोम है टाइप्स ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम मैं बता रहा हूँ, उसमें से पहला जो क्रोमोसोम है मैं आपको बता रहा हूँ लैम्ब्रस क्रोमोसोम है। कौन सा? लैम्ब्रस क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। ओके, दे आर फाउंड इन द एम्फीबियन ओसाइट। एम्फीबियन ओसाइट मतलब फ्रॉग जैसे जो एनिमल्स है उनके ओसाइट में मिलते हैं ये। ओके, डिप्लोइड स्टेज में आपको मिलता है मेयोसिस के ये, और ये जॉब के अंदर भी मिलता है कौन? लिम्ब्रस क्रोमोसोम। ओके, एंड सीरीज ऑफ क्रोमैटिन फॉर्म होता है इसमें, यॉर्क फॉर्मेशन करता है, या उसको बोलते हैं ये यॉर्क फॉर्मेशन। एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं कौन? लैम्ब्रस क्रोमोसोम हेल्प इन द एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ये, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है पॉलिटिक क्रोमोसोम्स। पॉलिटिक क्रोमोसोम मतलब ये भी ऐसे क्रोमोसोम है जो सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं, किसके? ड्रोसोफिलाई के। और इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो डिस्कवर किया, मैंने आपको बोला था लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। लैम्ब्रस क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। और ये जो बोल रहा हूँ मैं आपको पॉलिटिक क्रोमोसोम, इट इज डिस्कवर्ड बाय बाल्बिनी। इसको बाल्बिनी बॉडी बोलते हैं। बाल्बिनी स्टडी किया है कहाँ पे? जनरली इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में, स्पेशली जो ड्रोसोफिला टाइप के इंसेक्ट है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हो या फिर बाकी कुछ इंसेक्ट है, उनके बॉडी मिलता है कौन? पॉलिटिक क्रोमोसोम। ओके, या एंटीपोडल सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म सेल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, इसमें मिलता है कौन? पॉलिटिक क्रोमोसोम्स। ओके, उसका साइज जो है 200 माइक्रोन रहता है, किसका? पॉलिटिक क्रोमोसोम का बड़ा रहता है ये। ओके, एंड फाउंड इन सम ऑफ द प्लेस ऑफ स्टैंड एंड दे आर पफी इन नेचर एंड रैपिड ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी हेल्प करते हैं कौन? दैट इज सेकंड इज कॉल्ड द पॉलिटिक क्रोमोसोम हेल्प इन द रैपिड ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्मेशन टू RNA। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर इज कैरियोटाइप एंड आइडोग्राम्स। कैरियोटाइप एंड आइडोग्राम क्या है? देखो, व्हाट इज कैरियोटाइप्स? आपको पता है हर एक सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम रहते हैं ना। हर एक सेल के अंदर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम। Now next is iodogram or karyotypes. What is karyotypes? Karyotype is also called as diagrammatic presentation of the chromosome inside the cell called as karyotype. इसमें हम क्या करते हैं? पिक्चर स्टडी करते हैं, फोटोग्राफ स्टडी करते हैं किसका? क्रोमोसोम का, जो सेल के अंदर अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं karyotype. And what is iodogram? आयोडोग्राम क्या है? ओके, क्रोमोसोम का सीक्वेंस स्टडी करना है। ओके, सीक्वेंस से क्रोमोसोम जब अरेंज करते हैं हम लोग, मतलब कौन सा क्रोमोसोम बड़ा है कौन सा छोटा है, उसका हम जब सीक्वेंस से अरेंज करते हैं क्रोमोसोम को, उसको हम बोलते हैं आयोडोग्राम्स। और आपको मैंने बोला था क्रोमोसोम जो आपको क्लियर दिखता है, ज़्यादा मेटाफेज में दिखता है ना, मेटाफेज इज द स्टेज, इसमें आप क्रोमोसोम क्लियर देख पाते हैं। ओके, आयोडोग्राम में क्या करते हैं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर कॉल्ड आयोडोग्राम्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
अब देखिए ये जो पूरी सेल ऑर्गेनल्स है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर की पार्ट है ये। सबसे बाहर क्या है, सेल की बॉडी है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट सेल में और फंगल सेल में रहता है, सेल मेम्ब्रेन ऑल सेल में प्रेजेंट है। ओके, बाद में सेकंड पार्ट जो मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जिसमें साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट है उसको साइटोसोल बोलते हैं। बाद में सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स में क्या है, तीन टाइप के सेल ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्पेरोसोम एंड माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल के ऊपर टोनोप्लास्ट रहता है। एंड विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड करने वाले सेल ऑर्गेनल जो है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, दैट राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, देन साइटोस्केलेटन। आपको बताया था मैंने, सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल में रहता है। ओके, बाद में क्लोरोप्लास्ट found in a cell, the nucleus occupies a place of prime importance as it is the control center that regulates metabolic activities which keep a cell alive. Most eukaryotic cells possess a single nucleus. However, we do find cells with multiple nuclei as well as cells without a nucleus. Described by Robert Brown in 1831, the nucleus was one of the earliest organelles that scientists became aware of. The advent of the electron microscope enabled scientists to become aware of the various components of a nucleus. For instance, scientists observed that the nucleus is surrounded by a nuclear envelope or nuclear membrane that acts as a barrier between the contents of the nucleus and the other organelles present in the cytoplasm. The nuclear envelope consists of the outer membrane and inner membrane, which run parallel to each other and are separated by the perinuclear space. The outer membrane of the nuclear envelope is connected with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it. At a number of places, the two membranes fuse and give rise to minute pores called nuclear pores. These pores allow two-way movement of RNA and protein molecules between the nucleus and the cytoplasm. Present inside the nuclear envelope is the nucleoplasm or the nuclear matrix that contains a spherical structure called the nucleolus. The nucleolus lacks a membrane which makes its content continuous with the nucleoplasm. The nucleolus is a major site for active ribosomal RNA synthesis, and hence cells that are active in protein synthesis have larger and numerous nucleoli. Apart from the nucleolus, the nucleoplasm also contains chromatin, a network of highly extended and elaborate nucleoprotein fibers that mainly consists of DNA and histone proteins, though non-histone proteins are also associated with it. When a cell begins to divide, the chromatin condenses and coils to form rod-like structures called chromosomes. The DNA threads remain distributed in these chromosomes. Morphological studies of a chromosome have revealed that it consists of a primary constriction or centromere that has disc-shaped structures called kinetochores attached to its side. The parts present on either side of the centromere are called the arms of the chromosomes. Based on the position of the centromere, chromosomes can be classified as metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. In metacentric chromosomes, the centromere is exactly in the middle, forming two equal arms. In submetacentric chromosome, the centromere appears closer to one arm of the chromosome, creating two arms of unequal length. An acrocentric chromosome has its centromere located very close to one of its ends, resulting in one extremely short and one very long arm. In telocentric chromosomes, the centromere is located at one end of the single arm.
At times, chromosomes have secondary constrictions at a fixed location, lending the appearance of a small fragment called a satellite. These areas of secondary constriction help in the formation of a nucleolus after cell division. Chromosomes are an important part of the nucleus as they contain the genetic code of an organism. Thus, we have seen that the nucleus, along with its components, is an important organelle as it not only coordinates the functioning of the cell but also plays a vital role in cell division.